नहीं ये कौन सा है ये जो प्रिंसिपल है ना इसको देखना विषय मेरे को डायरेक्ट क्या देखे थे वो एक नाइन पे गया तो गया मेरे को इधर को मैं बंद ऐसे मना कर देता है हम लोग को कैरेक्टर्स नहीं स्कूल में 6 से ही देना अभी तक 6 में दिया मैं आवाज को पढ़ते हैं हम लोग जब पेपर देते थे पहले पहले इधर ही घुसते थे इस वाले सेक्शन में अब तो कोई सर एक वाला बात हमको पता चल गया जिसने मेरे का बोला भाई कैसा लगा है तुमको देखा सर बहुत अच्छा लगा हमारा भाई लेकिन लगता है कि ये सारी वस्तु वस्तु राउंडर से वर्षों में बनी है तो संख्या हो गया है इसका लिए मैं तो सिर्फ हॉल टिकट भूल गया था तो हॉल में चौके ऊपर गया होता था मैं तो लिखना था इसलिए मेरे पेपर से हाथ से पेपर लिया था मतलब सेक्शन नहीं मेरा बात था 3 2 तो लिया मैं लिया हाथ में हॉल टिकट उधर चल देगा कल देखेंगे तो कल किसने 50 से निकाल ले मेरा नेक्स्ट देखेंगे कि नीचे रखा यहां पे रखा था चैन पूरी पड़ी थी आया देखा पैसा नहीं लेके आते नीचे रखते हैं उधर नीचे रखा था लेके नहीं तो क्या लिखेंगे बाद में तो आईपीएस वाले भी पेन Good morning, all of you. Today we are going to start with electricity numericals, mainly based on formula. Electricity. Today, in part 1, I am going to solve 6 numericals. That is from 11.1 to 11.6 according to new textbook. If you are having old textbook, then I will solve numericals from 12.1 to 12.6. And for that, you can write first formula. Make heading electricity numericals part 1. You can also make heading part 2 with this. I have divided these numericals in 3 parts. Just now we will solve part 1, which is very simple except 2 sums. 4 sums are very simple and easy.
Then in the next session today, I will take part 2 and then part 3. So today I would be able to complete electricity numericals, tomorrow 2 or 3 very important theory, and then also numericals of light, reflection and refraction. If you have any doubt, any theory, you can just send it to me. I will try to solve that also. Yesterday night, I sent very important video. You just go through it, then I will re-explain all of them so that you will be able to write it or attempt it in your Monday science paper of Standard 10 board. So you just start with the part 1, write down formula, very simple formula there are. First formula, you all know, I is equals to Q upon T. Second, V is equals to W upon Q. Third, V is equals to IL. Next, R is equals to rho into L upon A. So first part, 6 numericals you will solve with the help of these 4 formula. Just write it down. Where I is a symbol of current. I is a symbol of current. Its unit is A, that is ampere or ampere. Q, sorry, is called charge. That is number of electrons passing through a conductor, and its unit is coulomb. Or C. Generally we write C. Third, T is time and its unit is second of small s. V, potential difference. That is volt also, and its unit is V. Fifth, W, that is work done or energy. Its unit is Joule or J. R, resistance. Its unit is ohm or omega. L, length, unit is meter or N.
A area of cross section unit is meter square, and last this is resistivity constant. Resistivity constant इसका यूनिट होगा ओमेगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहां से इसकी फॉर्मूला इधर लिख दे, R इंटू ए अपॉन एल इज रो। R मतलब ओमेगा, ए मतलब एरिया, और फाइनली कैंसिल होके हुई हो जाएगा ओमेगा इंटू मीटर। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, very very important this is। आज के सारे सम इस पार्ट पर हो गए, इस टॉपिक पर हो गए। थोड़ा करेक्शन कर दे, पूरा COU एंड MD। हो गया कॉपी? चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स। आज सैटरडे शाम तक सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश हो सकते हैं, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो कल कुछ और काम भी होगा, जिसमें खास तो 2-3 थियोरी बायोलॉजी की एक्सप्लेन करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको एक रिप्रोडक्शन करना है। फिर DNA के ऊपर एक टॉपिक है, और उसके बाद मेरा विचार है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करें, और ये सब हो जाएगा। तो आप क्लास अटेंड करें, अगर नहीं कर पाए तो बाद में वीडियो देख ले। अब जो मैं क्लास में आप सबसे पूछता रहता हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कौन सॉल्व कर सकता है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वही स्टूडेंट सॉल्व करेगा जिसके पास 2 चीजों का नॉलेज है। फर्स्ट, फॉर्मूला जो मैंने लिख दी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपके सामने 4 फॉर्मूला है और उस पर टोटल 6 सम। फिर पार्ट 2 दोपहर को करूंगा, उसमें 2 ही फॉर्मूला आएगी, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और फिर एक पार्ट 3 है जो पावर के ऊपर है। तो इस तरह से बहुत सुकून से हम सम करेंगे। एक ही साथ सम करना नहीं चाहता, नहीं तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। अभी 6 सम करके हम उठ जाएंगे, फिर आप अपना रीडिंग स्टार्ट करें। अब ये चारों फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला थोड़ी समझने लायक है, सब मैंने इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन में कराया। और अब ये लास्ट वन, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, मतलब किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब आप जानते हो, द फैक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, and each and every object possesses resistance, including conducting wire. Copper also has resistance. So resistance depends on length. More is the length, more is the resistance. और यहाँ A जो है वो डिनोमिनेटर में, इसको कहा जाएगा कि resistance of a conductor is inversely proportional to the area. Inversely का मतलब less is the area, more is the resistance, more is the area, less is the, खैर अभी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक नंबर 4 की जो फॉर्मूला है उसको छोड़े 3 फॉर्मूला बहुत आसान है। फर्स्ट, I is equals to Q upon T, सेकंड V is equals to W upon Q, और थर्ड तो फेमस है, V is equals to IR। तो पहले तो आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करनी है, ये 4 है, अभी 4 के सम ही करना है, दोपहर तक आप भी घर जाके पढ़ लो, बहुत इजी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टरनून सेशन में होगा, जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो मैं अपनी बात को पूरी करूं इस ये कहकर कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कौन कर पाएगा, जिसके पास 2 चीजों का नॉलेज हो, एक फॉर्मूला और दूसरा प्रॉपर एसआई यूनिट्स। तो मैंने सारे यूनिट्स लिख दिए। आई का यूनिट है एम्पियर, क्यू का यूनिट है सी दैट इज कूलम, टी यानी टाइम का यूनिट है सेकंड, डब्ल्यू वर्क डन यानी जूल बराबर एनर्जी भी कहते हैं डब्ल्यू को, वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्ट भी कहते हैं और उसका यूनिट भी वोल्ट है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपके सामने। एल, एक रह गया आर, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, इसका यूनिट है ओमेगा या तो ओम, जिसका सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ये। और फिर लेंथ, आप सिंपल किसी भी चीज की लेंथ मेजर होती है इन द यूनिट ऑफ मीटर, और एरिया आप लोग पढ़ रहे हो मैथ्स में, एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपको बाय हार्ट कर लेना है बराबर। अब मैं सम स्टार्ट करूं, इजी है, यू विल एंजॉय दिस सेशन। Let us begin. आज का पहला सम, write down all of you. A current of 0.5 ampere, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb, for 10 minutes, full stop,
find the amount of electric charge. Find the amount of electric charge हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ नसीमा था। किसका? अच्छा कुछ काम है वैसे आपका? मुझे क्लास में बिजी हूँ तो फोन करो बाद में चलेगा? आवाज नहीं आता तुम्हारा। मैं कीजिए 11:15। हाँ हाँ मैं जब क्लास में हूँ मैं बात करता हूँ। नहीं मैं बात करता हूँ, फिक्र मत करो। मुझे क्लास ले रहे हूँ, 10वीं की बोर्ड की एग्जाम है ना, तो बच्चे बैठे ले तो फिर सुकून से बात करता हूँ। आवाज नहीं आता तुम्हारा, आवाज नहीं आता। हाँ मैं करूँगा। हाँ मैं क्या लिखा लास्ट में? Find the amount of electric charge that flows through the circuit. That flows through the circuit. चलिए बच्चे, अब आप लिखने का बहुत टेंशन नहीं ले, आप बाद में भी इसको बोर्ड पर से छोड़ो। चलिए सुनो, काम करो, फोन ऊपर ही देखिए ताकि सुकून से पढ़ाई। घंटे को देर हुए फोन बहुत आ रहा है, आप रिसीव करो, ऐसा हो। ठीक है सर। चलो अब सुनिए, अभी अभी मैंने एक बात बताई आपसे, who can solve numericals of physics? The student who has the knowledge of formula, number 1, second proper SI unit, and third जो मैं अभी कहूंगा मेन्यू का मतलब होगा लिस्ट, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। ये अगर आप करते हो तो आपका सम एकदम इजी हो जाएगा। फिर से थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ लिस्ट ऑफ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए करंट दिया हुआ है, एम आई राइट? तो उसका पहले लिस्ट तैयार करें। आई इज इक्वल्स टू 0.5 ampere. This is current which is given, and ampere is a proper unit, वो इस यूनिट है। एम्पियर जो है वो परफेक्ट यूनिट है। दूसरा दिया है शायद टाइम, व्हाट इट इज 10 मिनट्स। अब ये नहीं चलेगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त टेक्स्ट बुक में एसआई यूनिट ऑफ टाइम मिनट नहीं है, सेकंड्स, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, यही इस पर ही मैंने अभी 10 मिनट तक लेक्चर दिया कि हु कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। I told you, I repeat again, the student who has the knowledge of 1, 2, 3 things. Number 1, formula. Number 2, proper SI unit. And number 3, जो मैं बना रहा हूँ, मैन्यू। अब यहाँ SI यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा मिनट्स को सेकंड, तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप सब जानते हो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स, तो 10 मिनट बराबर 600। तो ये इजी हो जाएगा। दिस विल बी 10 into 60, the answer is 600 सेकंड। और आपको पूछा है चार्ज, तो आपको चार्ज का सिंबल बाय ऐड करना पड़ेगा Q, और उसका यूनिट होता है C, कैपिटल C, जिसको हम कहते हैं कूलम। तो ये मेन्यू तैयार हो गया। मेन्यू तैयार होने के बाद तुरंत आपको लिखना है फॉर्मूला। बहुत इजी फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I का वैल्यू है 0.5 को डायरेक्ट लिख दूं 5 अपॉन 10 ताकि सम इजी हो जाए।
We need to find Q और टाइम होगा 600 सेकंड. As we need to find Q, उसको अकेला अलग छोड़ दे. तो 100 को वहां से हटा, 600 को वहां से हटा दे by the method of cross multiplying. तो ये बेचारा अकेला हो जाएगा. This will be 5 into 600 upon 10. आपका आंसर हो गया 300 कूलम. 300 कूलम. सिंपल है, इजी, कोई दिक्कत नहीं. पार्ट 1 बहुत आराम से होगा एक्सेप्ट 2 सम्स. टोटल 6 सम. थोड़ा हम रेस्ट और ब्रेक लेंगे, थोड़े सेशन में बांटेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और ये ऑल 6 सम्स अभी याद ही रह जाएंगे. फिर हम पार्ट 2 करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वो बेस्ड होंगे ऑन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. दो दिन बराबर रिवीजन अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा काम होने वाला है. चलिए और नेक्स्ट सेकंड. हाउ मच वर्क is done. How much work is done in moving a charge of 2C, कैपिटल C का मतलब कूलम. In moving a charge of 2C across 2 points, having a potential difference of 12 volt, having a potential difference of 12 volt. क्वेश्चन. चलो आज का दूसरा सम फिर से एकदम सिंपल एंड शॉर्ट. तो जो मैंने आपको बताया वो याद रखें कि सबसे पहले मेन्यू तैयार करें प्रॉपर यूनिट के साथ और उसके बाद फॉर्मूला सम हो ही जाएगा. चलिए शिवम जरा लिस्ट बनवाइए, क्या क्या दिया है. 2 कूलम, एक V = 12 वोल्ट 10 वोल्ट बैटरी है. चलिए इसको पता नहीं चल रहा है, ये 2 कूलम बोल गया लेकिन कूलम का इसको सिंबल नहीं मालूम है. तो कूलम का सिंबल होगा Q, जिसको चार्ज कहते हैं. 2 कूलम. बैटरी का कैपेसिटी दिया है V is equals to 12 वोल्ट और पूछा है हाउ मच वर्क, और वर्क का सिंबल होता है W और इसका यूनिट होगा J, जूल. अब आपको फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बोर्ड पर दी थी. V is equals to W upon Q. इजी हो गया सब. 12 is equals to W upon 2. 12 2 हो जाएगा 24 और यूनिट इज मस्ट. दूसरा सम हो गया. चलिए एंजॉय दिस रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको एंजॉय करें. दूसरा सम एकदम इजी किया, 2 चीजों ने, फॉर्मूला और प्रॉपर यूनिट, और तीसरी मेन्यू. ओके चलो नेक्स्ट.
Right. How much current? How much current will WILL? How much current will an electric bulb? How much current will an electric bulb draw DRAW from a 220 volt source? V लिखना वोल्ट में. From a 220 V यानी वोल्ट source, comma, if the resistance of the bulb filament, if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, question mark, 1200 ohm, question mark. चलिए आज का तीसरा. इस क्वेश्चन में दो है, मैंने अलग कर दिए एक पहला उठा लिया. चलो बच्चे लोग फिर से एक बार मेन्यू तैयार करें. बता सकते हो व्हाट इज गिवन, क्या क्या दिया हुआ है? वोल्ट मतलब V. हाउ मच इट इज? 220 वोल्ट. फाइन. रेजिस्टेंस R 1200. fine. 1200 ohm. And how much current means you have to find R. और उसका यूनिट है. तो गिवन क्या है वो लिख दिया विथ प्रॉपर यूनिट. जैसे ही मेन्यू तैयार हो जाए इमीडिएटली फॉर्मूला, और ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इन तीनों को जोड़ती हुई फॉर्मूला है V is equals to IR. V is equals to IR. V 220, I we have to find R 1200. Cross multiply so that we can separate I, that is current, and as this is multiplication, so we have to do cross multiplication to take 1200 in the denominator. So this will become 220 upon 1200 is equals to I. Cancel. 2 11s are 2 60s are. So 11 upon 60. अब नए रूल के हिसाब से फ्रैक्शन रहने दे तो कोई टेंशन आएगा नहीं, फिर भी कोशिश करें 11 upon 60 को थोड़ा इजी करें. 11 upon 6 into 10, इससे आपका डिवीजन इजी हो जाएगा. 11 upon 6, 6 1 जा 6, 5 point 6 8 is a 6 3 is a. So the answer of 11 upon 6 is 1 point upon अभी बचा हुआ है 10, तो इसको यहाँ एक लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपका आंसर 0.18. राइट. प्लीज राइट डाउन. एकदम स्मूथ वे में क्लास चलेगा कल तक, ये बोल देता. बहुत अच्छी तरह से क्लास चलने वाला है. रिपीटेड सेशंस लूंगा, थोड़े थोड़े थोड़े, आपको बर्डन नहीं आएगा. आज का टारगेट है ओनली इलेक्ट्रिसिटी.
Next. Okay. How much current? How much current will? How much current will an electric heater coil? How much current will an electric heater coil draw? DRAW, draw from a 220 volt source, from a 220 volt source, comma, if the resistance of the heater, if the resistance of the heater coil, resistance of the heater coil is 100 ohm, is 100 ohm. Question. चलो इकबाल स्टैंड अप, अब बिल्कुल डरे बगैर मेन्यू तैयार करवाओ. V is equals to 220. Correct. I is equals to 10. I. इसको नहीं मालूम. रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R. IR नहीं, R. कितना है? 100 ओम. तो 12 बोल रहा था. ठीक है. 12 कहाँ से बोला? अच्छा तो आई क्या फाइन क्या करना है? करंट. गाड़ी जब फांके मार रहा है ये तो खा पी कर. बराबर. बैटरी का कैपेसिटी कितना है बच्चे लोग? 220 वोल्ट. रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉइल है, आई थिंक हीटर कॉइल, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम. और फाइंड क्या करना है? करंट. बट व्हाट इज द सिंबल ऑफ करंट? आई. घबराओ मत, बोलने का रफ भी. व्हाट इज द सिंबल ऑफ करंट? आई. व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? ए. फॉर्मूला सेम सम. मैंने दो पार्ट में कर दिया. V is equals to P220. We need to find I. R 100. Therefore, cross multiply of 100 will give us 22. ये तो easy है. 2.2 एम्पीयर. लिख. 2.22 एम्पीयर. अगेन लिखो थोड़ा IMP इम्पोर्टेंस. The potential difference between the terminals, the potential difference between the terminals of an electric heater, terminals of an electric heater is 60 volt, is 60 volt when
when it draws a current of when it draws a current of 4 ampere. It draws a current of 4 ampere from the source. Full stop. What current will the heater draw? What current will the heater draw if the potential difference is increased? Potential difference is increased to TO2 120 volt. Question. चलो मस्त समय, जरा ध्यान दे। यहां पर फिर से एक हीटर को जोड़ा जा रहा है 60 वोल्ट की बैटरी के साथ। समझना बराबर, हीटर को पहले जोड़ा जा रहा है 60 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो वो 60 वोल्ट की बैटरी उस हीटर को 4 एम्पियर का करंट दे सकती है। यह पहले लिखा, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में समझो कि एक इलेक्ट्रिक हीटर जो जनरली पानी गर्म करने में काम लगता है, उसको 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो 60 वोल्ट की बैटरी में से उसने 4 एम्पियर का करंट ले लिया। फिर बाद में पूछते हैं कि अगर इस हीटर को 60 के बजाय 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़े तो करंट कितना मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो बट नेचुरल, आप सब जानते हो, आपने छोटे छोटे सेल देखे होंगे, वो बढ़ते जाते, तो सेल जितना बढ़ेगा उतना करंट ज्यादा है। एक रिमोट का सेल आता है पेंसिल, उसके ऊपर एक पेंसिल सेल, उसके ऊपर एक बड़ा सेल, उसके तो जितने सेल की कैपेसिटी ज्यादा उतना करंट ज्यादा। तो बस ये भी ऐसा ही है। आप बेसिक समझे पहले कि एक हीटर को पहले जोड़ा गया 60 वोल्ट की बैटरी में, तो अंदर क्लियर कर दिया कि जब किसी हीटर को 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ो तो करंट उसमें लेगा 4 एम्पियर, ये लिखा है। फिर तुरंत पूछते हैं कि मान लो 60 की जगह उसको 120 के साथ जोड़ दे, तो नेचुरली हम पहले इतना तो समझ ले कि भाई क्या ज्यादा मिलेगा करंट, तो वो कितना मिलेगा, दैट वी हैव टू फाइंड डबल। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू IR का मतलब ही क्या होता है, मोर इज द वोल्टेज मोर इज द करंट। सिंपल, तो डबल ही हो जाएगा। लेकिन अब हमें तो कैलकुलेट करके मार्क्स लेना है, बराबर। तो मैं इसको ऐसे करूं, पार्ट 1 देखना, इधर पार्ट 1 में हम मेनू तैयार करें, तो V इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट, I इज इक्वल्स टू, बस आगे कुछ नहीं। अब अपने काम करें, यहाँ एक फॉर्मूला डाल दे, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। तो V कितना होगा 60, I कितना होगा 4, R वी डोंट नो, तो 60 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 ओम। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन हमें भी नहीं पता था क्या होगा, तो पहले स्टेटमेंट की स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, पहले स्टेटमेंट का सर पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट ये था कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर बराबर इज कनेक्टेड टू अ 60 वोल्ट बैटरी देन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, फुल स्टॉप। उसको हमने लिखा तो पता चला कि वो जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। अब दूसरे स्टेटमेंट में पार्ट 2 कर देते हैं यहाँ पर,
पार्ट 2 में क्या कहा गया है कि वोल्टेज जो है वो बढ़ा दिया गया है 120 और आपको पूछा है फाइंड करंट। जब 60 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा था तो करंट कितना था 4। अब पूछ रहे कि अगर 120 वोल्ट की बैटरी के साथ हीटर को जोड़ो तो करंट इज हाउ मच। तो फिर से यही फॉर्मूला V is equals to IR 120 you to find I R हमने ढूंढा वो अब काम लग जाने का। So 120 upon 15 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी आई का यूनिट क्या होता है? सिंपल सिंपल पार्ट 1 इजी ही है। हो गया। नेक्स्ट अब 2 सम है, फिर क्लास बंद होगा, उसका टाइम लगेगा 15-20 मिनट। फिर पार्ट 2 हम बाद में 2 पेपर्स ओवर टाइम की डिसाइड पार्ट 2 जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स होंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। मोस्ट आज इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो जाए। देखो आज का सेकंड क्लास सम resistance of a metal wire, resistance of a metal wire of length 1 meter of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. Full stop. If the diameter of the wire is 0.3 mm यानी मिलीमीटर, comma, then THEN, then what will be the resistivity of the metal wire at this temperature? Start.
चलो बच्चे लोग, इससे पहले कि मैं उसका अलग ही वीडियो भेजता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से उसको 10 मिनट का एक वीडियो दूसरा बना के फिर डाल देता हूँ। न्यूमेरिकल्स पूरे होने के बाद क्या पढ़ना है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। चलिए, आज का सेकंड लास्ट सम बहुत अच्छी तरह से 5 सम हुए, छठा सम, एम आई राइट? पहले तो एक काम करें, सोचे समझे बगैर लिस्ट तो तैयार करें, फिर देखते हैं क्या करना है, बराबर? तो पहले आई थिंक रेजिस्टेंस दिया है, कितना है? कितना? 26। अभी हम ज्यादा नहीं सोचे, R इज इक्वल्स टू डायमीटर, ओके, कितना है? 0.3 mm। हाँ, लेंथ ऑफ द वायर, बराबर, उसको L बोलते हैं, कितना? 1 मीटर। और फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो दिया है, रेजिस्टिविटी का ये सिंबल है रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। जैसे 9th में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था, इसको पढ़ा जाता है रो। क्या पढ़ा जाता है? ऐसे पी जैसा थोड़ा। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, वर्ड क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात। हो गया, मेनू तैयार। फॉर्मूला आज दिया R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A दिया, am I right? एक ही फॉर्मूला टफ है, बाकी सब इजी। अब इधर देखो बच्चे लोग, when I started the revision of numericals of electricity of physics today, what I told, who can solve the numericals of physics? कौन सॉल्व कर सकता है? तो मैंने बताया 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मूला और दूसरा प्रॉपर ऐसा यूनिट। या यूनिट में प्रॉब्लम, एक यूनिट mm यानी मिलीमीटर है और दूसरा यूनिट है मीटर। या तो दोनों mm में होना चाहिए या तो दोनों मीटर। हम मीटर, क्योंकि मीटर इज अ प्रॉपर ऐसा यूनिट, mm नहीं। अब आपको ये बाई हार्ट, जैसे आप सब जानते हो बच्चे लोग, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100। तो कोई भी बताएगा। तो उसी तरह 1 मीटर बराबर होते हैं, क्या लिख दिया, पढ़ लो, 1000 mm। बाय हार्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो मालूम होगा ही, कंपलसरी, इतना नॉलेज तो होना चाहिए। तो इसी तरह 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। अब हम mm को मीटर में लपेटे, क्योंकि मीटर इज अ प्रॉपर यूनिट फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो इसको उल्टा लिखे, 1000 mm is equals to 1 meter. Therefore, 0.3 mm इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.3 into 1 upon 1000। ये निकालोगे, देखना कि 3 upon 10 into 1000, 3 upon 10,000। देखना मजा आएगी, अभी कोई टफ हो नहीं रहा है। अब इसको या तो देखो ऐसे में लिख सकते हैं, 1 2 3 4, बराबर। यहां से 1 2 3 4, फिर ये क्या आ जाएगा, पॉइंट। ऐसे निकल। मैं 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर में ये सीखा है, देखना भी मजा आएगी। इसको लिखा जाएगा 10⁴। कितने जीरो है? 4। फिर इसको 10⁴ को ऊपर लेने पर ये 9th में आ गया था 10⁻⁻। ये 8th स्टैंडर्ड में आता है एक लेसन, पावर एंड इंडेक्स या एक्सपोनेंट। नेगेटिव, ये पॉजिटिव पावर है, अगर इस 10 का इन्वर्स करोगे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। आई बात समझ में? चलो, तो ये है डायामीटर। क्या है ये?
Am I right? लेकिन मैंने कहा तो न्यूसेंस है ये. Diameter should always be converted into radius. So what is the formula of radius? D upon 2. तो D कितना है वहां लिखा है D 3 into 10 raised to minus 4 upon 2 और आपको 3 upon 2 1.5. 3 का आधा 1.5 होता है 1.5. 3 का आधा हरीश सर वही बता देगा 3 बोलो 2 1 जा 2 पॉइंट आगे 1 पॉइंट. 3 का आधा 3 upon 2 या हाफ ऑफ 3 और 3 का आधा 1.5. देसी भाषा में सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया. टफ टाइम लग रहा है. अब फॉर्मूला लिखे तो ये अभी फॉर्मूला आपको बोर्ड पर लिखाई गई थी. R is equals to rho into L upon E. हमें फाइंड क्या करना है रो. व्हाट इज रो? हमारे पास सब कुछ है. R भी है 26 रो. L भी है किधर गया 1 मीटर. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एरिया. एम्पियर नहीं बेटा, ए का मतलब एम्पियर नहीं बेटा, एरिया. एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ कोई बताओ. ये देखो ये आपका वायर है. वायर ऐसा होता है हाँ गोल. हाँ तो ये वायर है उसमें इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल. क्या होगा अंदर राउंड राउंड होगा. एरिया ऑफ सर्कल लिखा जाएगा और एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होती है पाई. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर वैल्यू रखें 26 into पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो. 1 की तो कोई वैल्यू. अब सॉल्व हो जाएगा सब. पाई लिखेंगे हम 3.14 और ये रहा. 2 बार लिखना पड़ेगा 1.5 into 1.5 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to minus 4. अब ये सारे पॉइंट निकालते निकालते हम पागल हो जाएंगे. 26 into 314 into 15 into 15 बराबर अपॉन देखना ये हो जाएगा 100. ये हो जाएगा 10 into 10 और ये 10 raised to minus 4 नीचे आ जाएगा तो 10 raised to 4. ये भी नीचे आ जाएगा तो 10 raised to 4. तो कितने सारे जमा हुए. अब करना कुछ भी नहीं है आपको. ये हाँ मल्टीप्लाई सिर्फ कुछ करना नहीं है. कैंसल आई थिंक चलो जितना हो सके उतना करें. देखना 2 2 13 जा 2 5 जा. am I right? 5 1 जा 5 3 जा. अच्छा चल रहा है काम. ये भी होगा 2 देखना 2 157 जा 2 5 जा 5 1 जा 5. थोड़ा इजी हो गया. तो आपको क्या आंसर बचा 13 into 157 into 9 अपॉन 4 ने 4 8 और ये 10 raised to कितने होंगे 10. am I right? ये 4 और 4 कितना होगा 8 और ये 2 8 और 2 कितने हो गए. तो ये मल्टीप्लाई करने का और फिर ऊपर लिख देने का 10 raised to minus 10. देखो मस्त. इसके बाद वाला सब भी और सॉलिड है. इसके बाद वाला लेकिन बोल देता हूं मेरे 32 साल का एक्सपीरियंस ये सम बोर्ड में कोई पूछेगा नहीं. फिर भी कर लो हिम्मत बढ़ेगी कि ये सम भी हमने किया. कल जो वीडियो भेजे थे उसको बराबर देखना फिर उसको समझाना.
सब ऑनलाइन ही थे। बस आपके लिए तो जीता हूँ, मरूंगा भी तुम लोग के लिए। तीन में मांगा थे भविष्य से मेरा एक लड़की। हाँ, तो मतलब भी कोई था, एक तो भव्य मोटा था। हाँ और वो शब्दप्रीत हाँ सर, सब चाय पी के जा रहे थे। अच्छा क्लास 3 बजे जमा हो, और धूप बहुत हुआ था ना। नहीं चलेंगे इसमें तो हम दो घंटा दोपहर का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से ही पूछना है। ये सब पर बहुत ध्यान मत देना, इससे थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। मैं क्या बोलता हूँ, यूट्यूब पर देख लेना। हाँ सर। मार्केट मेरे पैसे हाँ हाँ बराबर। 5 मिनट में एग्जाम हो जाए तो तुम्हारा टाइम बचे। चलिए लास्ट, आज का लास्ट हम बच्चे लोग दूसरा सेशन हम दोपहर को चालू करेंगे 3 बजे, 3 से 4 चलो एक लास्ट, a wire of given material having length L, and area of cross section and area of cross section A, area of cross section A has a resistance of 4 ohm, full stop. What would be the resistance of another wire? What would be the resistance of another wire of the same material having length L upon 2, having length L upon 2 and area of cross section 2A, area of cross section 2A, full stop. चलिए लास्ट देख लो, a wire of given material having length L, मैंने तैयार करें, length of wire is equals to L ही दिया हुआ है। चलो बराबर, कोई नंबर नहीं दिया है क्या 1 मीटर के 2 मीटर ऐसा लिखा लिया, दूसरा यूनिट भी नहीं लिखा है, हम भी नहीं लिखे। दूसरा लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है
ए। तीसरा दिया है रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर। कितना है 4 ओम। बस फुल स्टॉप। यहां पर गाड़ी फुल स्टॉप। फिर बाद में करते हैं दूसरा पार्ट, इसको पार्ट 1 कह देते हैं। सर पार्ट 1 क्यों किया? क्योंकि वायर अनदर वायर ऐसा लिखा है ना, अनदर वायर लिखा है, तो ये हम इसको कहेंगे वायर 1। वायर 1, दिस इज वायर 1, और यहां पर हम ले लेंगे वायर 1 के बाद, क्योंकि अनदर वायर पहले वायर में क्या क्या दिया है, उसकी लेंथ कितनी L, उसका एरिया A, और उसका रेजिस्टेंस 4। अब फॉर्मूला L A को जोड़, अभी किया L और A को जोड़ता हुआ फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो, बोलते सीख जाओ, रो इनटू L अपॉन A। 4 इज इक्वल्स टू रो इनटू लेंथ कितना है L, एरिया कितना है, छोड़ दो क्यों, कुछ ठिकाना नहीं है, न L है न A है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। मैंने कहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब तो मैथ्स पूरा हो गया कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो छोड़ के आगे बढ़ो। सीखा है मैंने, आप ट्रेन स्टूडेंट हो, छोड़ दो, समझ नहीं पड़ा, छोड़ दो। चलो सेकंड वायर, अनदर वायर में क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा R, क्या होगा R, बराबर। What would be the resistance of another wire of same material having length, बदल गई, length of wire कितना आया, हाँ बदल गई, L अपॉन 2। एरिया देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया, तो पहले कितना 2A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 2A। एरिया देखो, लेंथ आधी हो गई, एरिया डबल हो गया। फिर से फॉर्मूला कौन, R इज इक्वल्स टू इनटू L अपॉन A, बराबर। देखना इधर बोर्ड पे R तो ढूंढना है, तो ऐसे छोड़ दे। ये क्या लिखा है, रो इंटू L अपॉन A तो है, लेकिन इधर L की जगह पर अब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। L की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, L अपॉन 2। चलेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आ जाए तो बड़ी बड़ी A कितना है, वो 2A अपॉन लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनटू 2A, चलेगा। L का वैल्यू कितना लिखा गया, L अपॉन 2। फिर A का वैल्यू, A की जगह पर क्या लिखा गया 2A, एरिया कितना है 2A। देखना मजा आएगा, क्या क्या अलग कर रहा हूं देखो, P इंटू L अपॉन A, ये अलग किया, P इंटू L अपॉन A, बाकी कौन बच गया, उसको अलग कर देता, 1 अपॉन 4, चलेगा। सब अलग अलग कर दिया, क्यों ऐसा किया, ये देखो पढ़ो, ये क्या लिखा है, रो इंटू L अपॉन A का वैल्यू कितना है, सेकेंड है 4, तो R इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 अपॉन 4, सो आंसर इज, ये कहां से आया, ये फ्रॉम 1, कहां से आया, फ्रॉम 1, व्हाट इज फ्रॉम 1, रो इंटू L अपॉन A इज इक्वल्स टू, लिख लो, फिर से समझाता हूं, लिख लो, हो गया सब, रेजिस्टेंस मिल गया 1 ओम, बराबर। चांस कम,
और फिर से रीएक्सप्लेन करो, लिखो मत, चलिए समझ लो, फिर से रीएक्सप्लेन करता हूं, चलिए बोलो कितने वायर है? फिर से 2 वायर। पहले वायर का लेंथ कितना है? L, उसका एरिया कितना है? और रेजिस्टेंस कितना है? तो L, A और R को जोड़ता हुआ आपको इक्वेशन यानी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। तो R 4 इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। कुछ भी नहीं हो सकता। रिजल्ट नंबर छोड़िए। दूसरा वायर, उसमें फाइंड क्या करना है? R। उसकी लेंथ अब देखना, पहले लेंथ कितनी थी सर? L अपॉन 2, यानी मान लो पहले 10 थी तो अब हो गई 5। क्या हो गई? 5। समझ में आ गया? पहले एरिया मान लो 10 था तो डबल हो गया 20। तो ये चेंज आया। फॉर्मूला सेम, लेकिन फॉर्मूला में L जो पहले 10 था वो अब कितना लिखने का? 5। तो पहले L था तो उसका आधा लिखने का L अपॉन 2। एरिया पहले 10 था तो हो गया 20, तो ये डबल कर, ये इंपॉर्टेंट है कि L की जगह बाकी सब सेम रहेगा। R इज इक्वल्स टू रो इनटू L की जगह पर क्या लिखा जाएगा? L अपॉन 2, और ये अपॉन A की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2। क्या लिखा जाएगा? फिर ये 3 को मैं साथ ले रहा हूं, रो इंटू L अपॉन A, ये नंबरों को अलग कर रहा हूं, 1 अपॉन 4। What is R into L upon A? Oh, sorry, what is even R का बोल दिया? What is rho into L upon A is equals to? तो ये पूरा निकल जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 4 into 4 and 4 cancel, so the answer is जब बाय बाय। लगभग 3 बजे मिलेंगे, मैं मैसेज फिर भी डाल दूंगा। पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज पैरेलल कनेक्शन वही पूछा जाएगा एग्जाम। सर कितने हाँ बेटा, कितने है? तो इसमें तो मैंने ये कर दिया है क्या?